Good morning, children. Welcome back in your English class. Children, I hope that you all are very good, feeling very fit, feeling very happy. Children, in today's lecture, we are going to start a new grammar topic, that is what is syntax. So let's start the explanation of syntax. And first, you know what is syntax. Now, children, syntax can be defined as a set of rules, principles and processes that preside over the structuring of sentences in any given language. Syntax defines the rules that need to be followed when forming a sentence from words, clauses, punctuation and phrases. Second point is that correct syntax involves a right choice of words, correct tense, matching number, proper arrangement of words and phrases. Proper syntax, unlike diction, is comparatively strict. Abiding by the rules of syntax is very important in all kinds of formal writing, and it is an indication that writer is knowledgeable. कहने का मतलब ये है बच्चों कि सिंटैक्स जो है आप इसको कह सकते हैं कि वाक्य में जो शब्दों का जो सही जगह होती है, यानी वाक्य में शब्दों को सही जगह पे सही रूप से यूज करने को हम सिंटैक्स कहते हैं। यानी वाक्य में, सेंटेंस में शब्दों को यानी वर्ड्स को सही तरीके से सही रूप में उसको यूज करना और सही रूप में उसको अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स। यानी द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। Now let's start the first topic in syntax is rules of article. And you have already read about the article. What are articles? A, an and the. So let's start the explanation of the articles. Now children, the articles are of two types, definite and indefinite articles. Now in English, there are three articles, a, an and the. And articles are used before nouns or noun equivalents and are types of adjectives. The definite article, that is the definite article, that is the is the definite article, is used where? Before a noun. For what? To indicate that the identity of a noun is known to the reader. And the indefinite article, the indefinite articles are a and an. The indefinite articles are a and an is used before a noun, that is general, or when its identity is not known. So there are certain situations in which a noun takes no article. There are certain situations, children, where in which noun takes no article. So as a guide, the following definitions and table are summarized the basic uses of articles. You can see the table and continue reading for a more explanation of the rules and for examples of how and when to apply them. Now let's start definite article. Definite article, as I told you, the is used before a singular or a plural noun. The is used before a singular or a plural noun to indicate that the identity of noun is known to the reader. Now indefinite article, that is a and an. It is a is used before a singular noun beginning with a consonant sound, and an is used before a singular noun beginning with a vowel sound. An is used before a singular noun beginning with a vowel sound. Now let's you can see in the picture count nouns. Count noun means refers to item that can be counted. In countable nouns, nouns that can be counted and are either singular or plural. And non-count nouns means refers to item that are not counted and are always singular. You can see the chart. Specific identity not known. The count nouns a and an is a and an, and non-count nouns में no article is used. Rule 2, specific identity known में डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, और नॉन काउंट नाउन्स में जो दा ही रहता है उसमें कोई और ए एन नहीं होता। मीन्स की रूल पहला आपका है कि स्पेसिफिक आइडेंटिटी नॉट नोन, यानी ए और एन आर्टिकल उस नाउन के पहले यूज करते हैं जो कि जिसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी रीडर को नहीं पता होती है,
और काउंट नाउन्स में जिसमें ए और एन, जिसमें हम जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, और नॉन काउंट नाउन्स में जो है उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं मालूम होती रीडर को, लेकिन वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स में। रूल 2 में बच्चों स्पेसिफिक आइडेंटिटी नोन, यानी द जो है काउंटेबल नाउन में यूज होता है वहां पर, यानी स्पेसिफिक आइडेंटिटी जो है जब पर्सन को पता होती है, किसी चीज या किसी पर्सन की स्पेसिफिक आइडेंटिटी उस रीडर को पता होती है तो द यूज होता है। और ये काउंटेबल नाउन्स में भी द यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन्स में भी द यूज होता है। कहाँ? जब स्पेसिफिक आइडेंटिटी इज नोन टू द रीडर। ना रूल 3 में है ऑल थिंग्स और थिंग्स इन जर्नल, यानी सभी जर्नल चीजों में क्या है। Now rule 3, all things or things in journal, that no article is used in countable nouns and no article is used in uncountable nouns. Now children, for the purpose of understanding how articles are used, it is very important to know that nouns can be either countable, that can be counted, or non-count, that can indefinite in quantity and cannot be counted. Now in addition, count nouns are either singular, or singular means one, or plural more than one. Non-count nouns are always in singular form. For example, if we are speaking of water that has been spoiled on the table, there can be one drop, यानी singular, or two or more drops. तो ये plural form हो गया of water on the table. The word drop in this example is a count noun because we can count the number of drops. Therefore, according to the rules applying to count nouns, the word drop would use the article a or the. However, if we are speaking of water in general spilled on the table, it would not be appropriate to count one water or two waters. So there would simply be water on the table. So water is a non-count noun. Therefore, according to the rules applying to non-count nouns, the word water would use no article the but not a. No articles or the but not a. मतलब would use no articles, मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम जो है अगर हम बहुत काउंटेबल नाउन्स और नॉन काउंटेबल नाउन्स आप पढ़ ही चुके हैं। नॉन काउंटेबल नाउन्स वही जिनको हम गिने जा सकते हैं और नॉन काउंटेबल नाउन वही जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे सपोज करिए अगर हमने बात की कि वाटर हैज़ मीन, हम टेबल पे जो है वाटर की बूंदें गिर गई तो वी कैन काउंट ड्रॉप्स। हम वाटर की बूंदों को यानी ड्रॉप्स को काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो वो जो बूंदें हैं, ड्रॉप्स हैं, वो ड्रॉप्स ऑफ जो वाटर हो गया वो काउंटेबल हो गया क्योंकि उसको हम गिन पा रहे हैं। बट वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते इफ यू टॉक अबाउट द वाटर स्पॉइल्ड ऑन द टेबल। तो उसमें ये तो यहाँ पे वाटर जो है वो काउंटेबल नहीं है, हम नहीं गिन सकते 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर, वी कांट काउंट द वाटर। तो ये नॉन काउंटेबल नाउन हो गया। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। एंड फॉर 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप आर्टिकल ए और द आर यूज्ड। नाउ रूल 1 देखो बच्चों, स्पेसिफिक आइडेंटिटी नॉट नोन। जैसे कि एज आई टोल्ड यू कि स्पेसिफिक आइडेंटिटी नॉट नोन, जैसे यूज द इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। जहां पे स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं रीडर को पता होती किसी पर्सन या किसी प्लेस के बारे में, तो वहां पर ए और एन यूज करते हैं। एंड ओनली विद द सिंगुलर नाउन, और ए और एन सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए यूज होती है जहां पे हुज स्पेसिफिक आइडेंटिटी इज नॉन टू द रीडर। तो यूज अ बिफोर नाउन दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड। जो है कॉन्सोनेंट साउंड यूज करता तो वहां पे ए यूज करते हैं। जहां पे वॉवल का साउंड प्रोड्यूस होता है वहां पे हम एन यूज करते हैं। नाउ यूज द आर्टिकल ए और एन टू इंडिकेट एनी नॉन स्पेसिफिक मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ अ कैटेगरी। जैसे आई थिंक एन एनिमल इज इन द गराज, द मैन इज अ scoundrel, we are looking for an apartment. Use the article a or an to indicate one in number as opposed to the more than one. I own a cat and 2 dogs. अब यहाँ पे देखो पहले आर्टिकल ए, I own a cat and 2 dogs. एक
एक बिल्ली यानी एक कैट के बारे में तो अ यूज हुआ है, और डॉग्स 2 हैं तो वहां पे कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, यानी वहां पे सिर्फ 2 नंबर है तो वहां पे 2 आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल्स यूज नहीं हुआ है। यूज द आर्टिकल्स बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड एंड यूज एन बिफोर अ वोवेल साउंड। ये आपको पता ही है, अ बॉय ये कॉन्स्टेंट यूज हो रहा है, एन एप्पल क्योंकि ए जो है वो वोवेल है इसलिए एन एप्पल। So sometimes an adjective comes between article and noun, जैसे an unhappy boy, a red apple। तो यहाँ पे कभी कभी जो है वो एडजेक्टिव आर्टिकल और नाउन के बीच में आ जाता है, जैसे बॉय और एन उसके बीच में एडजेक्टिव क्या हुआ, अनहैप्पी। एप्पल और ए के बीच में कौन सा एडजेक्टिव आया, रेड। तो आप जो है वो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाएंगे, नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और अगर एडजेक्टिव और नाउन एक साथ है तो आप एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाएंगे, जो भी आर्टिकल आप लगा रहे हैं, ए और एन जो भी लगा रहे हैं वो एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे। सो द प्लूरल फॉर्म ऑफ ए और एन इज मोर, यूज एंड सम टू इंडिकेट एन अनस्पेसिफाइड लिमिटेड नाउन मोर देन वन, यानी एन एप्पल सम एप्पल्स, यानी द प्लूरल फॉर्म ऑफ ए और एन इज सम, यूज सम टू इंडिकेट एन अनस्पेसिफाइड, यानी हम जो है ए यूज करते हैं, एक एन और ए यूज कर रहे हैं टू इंडिकेट जो है वो एक एप्पल के लिए, 2 एप्पल के लिए, एक एप्पल के लिए, एक स्पेसिफाइड एप्पल के लिए, और सम यूज कर रहे हैं अनस्पेसिफाइड के लिए, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ए और एन इंडिकेट आर यूज्ड टू इंडिकेट 1 और सम जो है फॉर अनस्पेसिफाइड। नाउ नेक्स्ट रूल इज स्पेसिफिक आइडेंटिटी नोन। अभी तक तो हमने पढ़ा कि स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं पता होती है रीडर को, तब वहां पर हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, ए और एन। अब दूसरा रूल है बच्चों, तो जब आइडेंटिटी, स्पेसिफिक आइडेंटिटी पता होती है रीडर को, तब कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, यूज द डेफिनेट आर्टिकल, हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, दैट इज द, एंड यूज द डेफिनेट आर्टिकल द विथ एनी नाउन whether singular or plural, count or non-count, when the specific identity of the noun is known to the reader। हम इंडेफिनिट आर्टिकल द यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल है। और हम कब यूज करते हैं द आर्टिकल का, जब किसी नाउन की स्पेसिफिक आइडेंटिटी, यानी सही उसकी स्पेसिफिक यानी स्पेशल आइडेंटिटी नाउन की जो है वो रीडर को पता होती है, तब उस सिचुएशन पे जो है हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब द चाहे वो नाउन सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे नॉन काउंटेबल हो, वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल द विद द नाउन, विथ एनी नाउन, विथ एनी नाउन व्हेन द specific identity of that noun is known to the reader। जैसे एग्जाम्पल देखो, I ate an apple yesterday, the apple was juicy and delicious। Now I ate an apple, यहाँ पे पहले में तो आपका जो है इनडेफिनेट आर्टिकल एन लगा है, क्योंकि वहां पे एप्पल की आइडेंटिटी जो है वो स्पेशली जो है वो नोन नहीं है। बट सेकंड में क्या है, द एप्पल वॉज जूसी एंड डिलिशियस, यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक चीज बताए, स्पेसिफिक आइडेंटिटी नोन है कि एप्पल वॉज जूसी एंड डिलिशियस, तो यहाँ पे एप्पल के पहले क्या लगा है, द। नाउ यूज द आर्टिकल द व्हेन एन एडजेक्टिव, फ्रेज और क्लॉज डिस्क्राइबिंग द नाउन clarifies or restricts its identity। पहला तो ये था कि हम जो है आर्टिकल द का यूज तब करते हैं when a particular noun has already been mentioned previously। पहला ये था कि जैसे कि हम द यूज उस नाउन तो बच्चों जैसे कि पहले आर्टिकल द यूज कब करते हैं, जब वो नाउन जो है वो पहले जो है ऑलरेडी हमको पता है उस नाउन के, हैज ऑलरेडी मेंशन प्रीवियसली। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आई एट एन एप्पल एस्टरडे, पहले सेंटेंस में एन एप्पल एस्टरडे, दूसरे सेंटेंस में द यूज हुआ, क्यों, क्योंकि एप्पल ऑलरेडी जो है हम मेंशनड है, पहले उस एप्पल के बारे में पहले कहा जा चुका है। तो द एप्पल वॉज जूसी एंड डिलिशियस, सेकेंड सेंटेंस में आर्टिकल द लगा। और पहले फिर दूसरी बात, जब यूज द आर्टिकल द कब यूज करते हैं, जैसे कि पहले हमने बताया कि द यूज करते हैं जब स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन नाउन इज नोन टू द रीडर। तो उसी रेफरेंस में सेकंड कब यूज, सेकंड आप देखिए रूल कि द आर्टिकल द व्हेन एन एडजेक्टिव, फ्रेज और क्लॉज डिस्क्राइबिंग द नाउन
clarifies or restrict its identity. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है the boy sitting next to me raised his hand. Now thank you for the advice you gave me. Now the boy sitting next to me raised his hand. यहाँ पे देखो क्या है, the boy sitting next to the. Now यहाँ पे क्या है, यहाँ पे noun को ये क्या कर रहा है, disclose the describes the boy, the specific boy, and it restricts its identity. यानी the boy only boy is sitting next to me and only that boy raised his hand. यानी वो स्पेसिफिक बॉय को जो है वो डिनोट कर रहा है. दैट इज वाई द आर्टिकल इज यूज्ड हियर. नाउ थैंक यू फॉर द एडवाइस यू गेव मी. एडवाइस यानी यू गेव मी फॉर द एडवाइस. व्हाट यू हैव गिवन? द एडवाइस. यानी तुमने क्या दिया? एडवाइस मुझे दिया. दैट वाज द स्पेसिफिक स्पेशल थिंग दैट यू हैव गिवन टू मी. दैट इज द एडवाइस. सो द एडवाइस, before noun, advice is a noun here, so before noun the article is used. Now use the article next, the, when the noun refers to something or someone that is unique. ये तो आपको पता है कि वो noun जो बिल्कुल remarkable है, unique है, थोड़ा हटके है या अलग है, तो use the before those nouns. The theory of relativity, the 2000 federal budget, या आप कैसे the Taj Mahal, the लाल किला. That is the जो specific है, जो unique है, someone या something is unique. Use the article before those nouns. Now rule 3 children, all things or things in general. Use no articles when plural. Now children, third rule about the article, the, all things or things in general use no article. With plural count nouns or any non-count nouns are used to mean all in all in general. Like trees are beautiful in the fall. All trees are beautiful in the fall. So यहाँ पे कोई ऐसा कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, या द ट्रीज, अ ट्रीज, एंड ट्रीज कुछ भी नहीं होगा. ही वॉज आस्किंग फॉर एडवाइस, ही वॉज आस्किंग फॉर एडवाइस इन जर्नल. सो आई डू नॉट लाइक कॉफी, आई डू नॉट लाइक ऑल कॉफी इन जर्नल. यानी मैं जर्नल में कॉफी नहीं पीता या नहीं लाइक करता, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा. Now children, we know that you already know about the countable nouns and uncountable nouns. Now first, you know the countable nouns. The major division of English noun is into two, countable and uncountable. The countable nouns are easy to recognize. They are things that we can count. For example, pen, we can count pens. We can have 1, 2, 3 or more pens. Here are some more uncountable nouns like dog, cat, animal, man, person, bottle, box, liter, coin, note, dollar, cup, plate, fork, table, chair, suitcase, bags. Like you can also the measurements like liter, dozen, or kilometer, or millimeter. These are also countable nouns. Now countable nouns can be singular or plural. My dog is playing, my dogs are hungry. And we can use the indefinite article, children, a or an, with the countable nouns. Like a dog is an animal. A dog is an animal. And people is countable, because people is the plural of person. We can count people. There is one person here, there are 3 people there. People is the plural of the person, so we can count people. There is one person here and there are 3 person there, so people is countable noun. Now non-countable nouns are those which usually cannot be counted. Like following are some example, like you can see the examples. Certain food and drinks items like bacon, beef, bread and broccoli, butter, cabbage, candy, cauliflower, celery, celery, cheese, chicken, chocolate, coffee, etc. All the items are given. You can see that. These are uncountable nouns. And certain non-food substances like air, cement, coal, dirt, gasoline, gold, paper, petroleum, plastic, rain, silver, snow, and soap, steel, wood, wool. These are also uncountable nouns. Now next is most abstract nouns like advice, anger, beauty, confidence, courage, employment, fun, happiness, health, honesty, information, intelligence, knowledge, love, poverty, satisfaction, truth and wealth. These are uncountable nouns. Areas of study like history, math, biology are also uncountable nouns. Sports में soccer, football, basket, hockey are also uncountable. Languages like Chinese, Spanish, Russian, English, etc. and other things like clothing,
equipment, furniture, homework, jewelry, luggage, lumber and machinery, mail, money, news, poetry, pollution, research, scenery, traffic, transportation, violence, weather, work. All these are uncountable nouns. Now children, there are certain geographical names are often confusing because some require the article and some do not. Like you use the. अब the article किन जोग्राफिकल प्लेसेस या जोग्राफिकल आइटम्स या नेम्स के आगे आप लगाएंगे, वो है आपका यूनाइटेड कंट्रीज, लार्ज रीजन्स, डेजर्ट्स, पेनिनसुलास, ओशंस, सीज, गल्फ्स, कैनाल्स, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस एंड माउंटेन रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड. ये सब चीजों के पहले आप जो इन नाउन्स के पहले जो है आप द यूज करेंगे जो कि जोग्राफिकल नेम्स हैं. ये जोग्राफिकल नेम्स जो हैं इनके पहले आप द आर्टिकल यूज करेंगे, जैसे द गोबी डेजर्ट, द यूनाइटेड स्टेट अरब एमिरेट्स, the Atlantic Ocean, all these things. Now second is do not use the with. अब जो है कुछ ऐसे geographical places names हैं जिनके पहले आप the use नहीं कर सकते. वो कौन कौन से हैं? Like streets, parks, cities, states, countries, most countries, continents, bays, single lake, single mountain island, जैसे जापान, शिकागो एंड माउंट एवरेस्ट, सैन फ्रांसिस्को बे. इनके पहले आप द यूज नहीं करेंगे. सो दीज आर द forms, these are the types and these are the rules. Now children, let's know some examples of the use of articles. Like I do not want a gun in my house. Any gun, that is a article is used. The gun is in the closest implies there is a specific gun. Now I do not want a gun in my house. यहाँ पे गन को जो है एक गन के बारे में बताया जा रहा है, तो आपने अ आर्टिकल यूज किया. द आपने क्यों सेकंड में यूज किया? बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक थिंग, यानी गन इज अ स्पेसिफिक गन. आई एम एफ्रेड ऑफ गन्स, ऑल गन्स इन जनरल, यानी आई एम एफ्रेड इन मैं सभी गन से आई एम एफ्रेड. तो गन्स हियर गन्स आर इन जनरल, सो द आर्टिकल, सो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है. She sent me a postcard from Italy, an unspecified postcard, not a letter, not a email. मतलब she sent me a postcard from Italy, मतलब ये unspecified है, यानी ये कोई लेटर भी नहीं है, not an email भी नहीं है. It is the postcard that I have my office, यानी यहाँ पर एक it is the postcard that I have in my office, यानी वो ऑफिस में जो उसने देखा वो पोस्ट कार्ड था, तो द पोस्ट कार्ड इज स्पेसिफिक. यहाँ पे पोस्ट कार्ड स्पेसिफिक हो गया, इसलिए द आर्टिकल यूज हो गया. एंड गेटिंग पोस्ट कार्ड मेक्स मी वांट टू ट्रेवल एनी पोस्ट कार्ड इन. सो नाउ गेटिंग पोस्ट कार्ड मेक्स मी वांट टू ट्रेवल एनी पोस्ट कार्ड इन जर्नल, यानी कोई भी पोस्ट कार्ड, जर्नल में बात कर रहे हैं, यहाँ पोस्ट कार्ड जर्नल हो गया, यानी कोई भी पोस्ट कार्ड हो सकता है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है. अब नेक्स्ट देखो, आई हैव अ डॉग, वन डॉग, यानी आई हैव हाउ मेनी डॉग, एक डॉग है, तो यहाँ पे अ आर्टिकल यूज है क्योंकि डॉग इज इन सिंगुलर फॉर्म. बट सेकेंड सेंटेंस में द डॉग इज वेरी फ्रेंडली, यानी हु इज वेरी फ्रेंडली, द स्पेसिफिक डॉग. द डॉग इज वेरी फ्रेंडली, द डॉग दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन, यानी यहाँ पे क्या है कि डॉग जो है, आई हैव अ डॉग, वन डॉग, यानी मेरे पास एक डॉग है. द डॉग इज वेरी फ्रेंडली, कौन सा डॉग, जो कि मेरे पास है, यानी पहले ही से मुझे पता है कि मेरे पास एक डॉग है जो ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ पे कि हाँ डॉग के बारे में कहा जा रहा है. सेकेंड सेंटेंस में उसी डॉग के बारे में कहा जा रहा है, सो द आर्टिकल इज यूज्ड. नाउ डॉग्स मेक्स ग्रेट पेट्स. नाउ यहाँ पे सभी डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी डॉग यहाँ पे डॉग्स की जर्नल हो गया, यानी सभी डॉग्स मेक ग्रेट पेट्स. सो यहाँ पे कोई भी जो आर्टिकल यूज नहीं हुआ है. सो यहाँ देखो, ग्रेटा नीड्स फर्नीचर इन हर अपार्टमेंट. नाउ फर्नीचर इज अ नॉन काउंटेबल नाउन. यहाँ फर्नीचर क्या है, इज अ नॉन काउंटेबल नाउन. यहाँ पे है फर्नीचर इज अ नॉन काउंट नाउन. नाउ शी इज गोइंग टू सेलेक्ट द फर्नीचर दैट शी नीड्स. यहाँ पे स्पेसिफिक फर्नीचर की बात हो रही है कि वो फर्नीचर गोइंग टू सेलेक्ट द फर्नीचर, यानी वो फर्नीचर को सिलेक्ट करने जा रही है, यानी किस चीज को सिलेक्ट करने जा रही है, एक स्पेसिफिक थिंग को सिलेक्ट करने जा रही है, एंड दैट थिंग इज फर्नीचर. ये इसलिए यहाँ पे द यूज हुआ है क्योंकि स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ नाउन इज नोन टू द रीडर. अब यहाँ पे शी होप्स टू फाइंड सम फर्नीचर दिस वीकेंड, एंड अनस्पेसिफाइड, यानी सम फर्नीचर, कुछ फर्नीचर हो सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फर्नीचर, तो यहाँ पे अनस्पेसिफाइड हो गया. दैट इज ऑल, दैट इज वाई यहाँ पे कोई भी यूज नहीं हुआ है. एंड वी आर गोइंग टू सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिस वीकेंड, द ओनली स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी हम सिर्फ स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने जा रहे हैं, तो स्पेसिफाइड है, ये स्पेसिफाइड है, दैट इज द इज यूज्ड हियर. So children, these are the rules of the articles and how we can use the articles in sentence to make
the sentence, to use the sentence, to write the sentence in correct form. So please, अगर आप sentence, अगर आपका incorrect sentence आ रहा है, तो अगर article को देख, article इसमें use है, तो आप अगर article से अगर sentences incorrect है, तो use correct form of articles in the sentence to make the sentences correct. Now let's talk about the possessive case. ये भी कई तरह से यूज होता है, जैसे कि आपका है it shows ownership with the addition of apostrophe s, or sometimes just an apostrophe. A noun can change from a simple person, place or thing to a person, place or thing that owns something. If the noun does not end with an s, add apostrophe s to the end of the noun. यानी कहने का मतलब है कि ये बहुत तरह से लगता है, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स के साथ के नामों के साथ लगता है, जैसे कि द काउज टेल इज वेरी लॉन्ग, द काउज टेल यानी काउ के आगे एपोस्ट्रोफी लग गया, यानी किसकी टेल, दैट बिलोंग्स टू समथिंग, तो द नाउन बिलोंग्स टू समथिंग, या द थिंग्स बिलोंग टू नाउन, तो उस नाउन में लगेगा, थिंग में नहीं लगेगा, यानी नेम में लगेगा काउज टेल. सोहन्स पेन, यानी सोहन्स पेन हैज बीन लॉस्ट, यानी सोहन के पेन में, किसकी पेन, सोहन की पेन, यानी पेन नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, और थिंग में या ऑब्जेक्ट में नहीं लगेगा. अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक साथ है तो सब्जेक्ट में नाउन लगे तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा. नाउ लेट्स सी द रूल. An apostrophe is almost always used with a singular noun in order to indicate what? Possession of an item or items by an individual, जैसा कि मैंने आपको भी बताया. For example, use an apostrophe to indicate ownership with the following, like the coat of the boy, the boy's coat, the sweater of the girl's sweater. यानी स्वेटर किसको बिलोंग कर रहा है, गर्ल को, कोट किसको बिलोंग कर रहा है, बॉय को. तो आप इतना बड़ा सेंटेंस लिख के ना लिख के आप apostrophe यूज करके शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, the boy's coat, the girl's sweater, the feet of the Jamin, Jamin's feet. Now children, possessive grammar for plural and irregular plurals, like for a plural possessive, जैसे कि प्लूरल पोजेसिव के लिए आप जैसे एपोस्ट्रोफियस प्लूरल नाउन्स में कैसे लगेंगे. यू नीड टू मेक अ नाउन प्लूरल और एंड यूज एन एपोस्ट्रोफी. तुमको नाउन को प्लूरल भी करना है और उसमें एपोस्ट्रोफी यूज करना है. तो हाउ कैन यू यूज? सी द एग्जाम्पल. For the word girls, add an apostrophe at the end of the word girls. यानी girls अगर प्लूरल फॉर्म में है तो वहाँ पे आप girls यानी लास्ट में, यानी girls के लास्ट में apostrophe s लगाएंगे. And do the same thing for the possessive names in ending in s like Jones. अब जब कोई भी नाम अगर उस नाम जो है s से एंड हो रहा है तो आप उसको, और हेस्टिंग्स, तो वहां पर भी आप जो है वो एस एपोस्ट्रोफी एस जो है वो एकदम लास्ट में एस के बाद लगाएंगे. द गर्ल्स रूम, द जोन्स जेट्सी, द हेस्टिंग्स हाउस, द पेरेंट्स हाउस, द बॉयज रूम, द लॉरेंस मीन्स, द गैसेस डोर, द बेबीज रूम. आप देख रहे हो यहाँ पे कि लास्ट में एस लगा है, फिर एपोस्ट्रोफी एस लगा, क्योंकि नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में है. और कुछ नेम्स ऐसे होते हैं जो कि एस से एंड होते हैं, उनके साथ भी जो एपोस्ट्रोफी एस जो है वो लास्ट में लगता है. Now next is for the nouns with irregular plural form like children, add an apostrophe then s. अब जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो irregular फॉर्म में होते हैं, जैसे children वर्ड है वो irregular फॉर्म में है, ये प्लूरल है लेकिन इसका ये नाउन irregular है, तो यहाँ पे जो apostrophe होगी वो children यानी एस के बाद चिल्ड्रन देन एस, यानी पहले एपोस्ट्रोफी लगाएंगे फिर एस लगाएंगे. यहाँ पे हम समझ रहे हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि चिल्ड्रन इज इन प्लूरल फॉर्म, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म होने के साथ साथ इररेगुलर फॉर्म भी है. तो जब इररेगुलर फॉर्म, जब कोई नाउन प्लूरल फॉर्म है और वो इररेगुलर फॉर्म में है, तो वहां पर जो है वो आप पहले एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे, फिर एस लिखेंगे. जैसे if you are talking about two women, then you would show possession by simply adding an apostrophe and the letter s. जैसे एग्जाम्पल देखिए, I think that is the women's bathroom, and we can watch the men's league, that is the children's book. The geese habitat is endangered. Now here see the women, men, children, geese. यहाँ पे देखिए सब प्लूरल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे नाउन सब प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन इररेगुलर फॉर्म में भी है. तो जब इररेगुलर फॉर्म में नाउन है, भले वो प्लूरल फॉर्म में है, तो आप जो एपोस्ट्रोफी एस लगा के तब एपोस्ट्रोफी लगा के तब आप एस लिखेंगे. नाउ चिल्ड्रन, possessive grammar for compound nouns. Compound nouns means noun made of two or more words. That is called compound nouns.
तो जैसे यहाँ पर है कि व्हेन इट कम्स टू पोजेसिव ग्रामर फॉर कंपाउंड नाउन्स, जैसे कि कंपाउंड नाउन्स मैंने बताया कि नाउन्स मेड अप ऑफ 2 or more nouns that are called compound nouns. So there are few ways there is going to be handled, like depending on if the compound nouns are working together or separately. यानी एक ही सेंटेंस में 2 नाउन यूज हो रहे हैं, ये मोर देन 1 नाउन यूज हो रहा है तो वो कंपाउंड नाउन्स हो गए। तो एक ही सेंटेंस में अगर 2 नाउन यूज हो रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि दोनों नाउन्स टुगेदर यूज हो रहे हैं या सेपरेटली यूज हो रहे हैं। जैसे मान लो व्हेन यू से माइकल एंड ईसाबेल्स, इट मीन्स दे आर टुगेदर, यानी अगर माइकल यानी पहले नाउन में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा है, दूसरे नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा है और दोनों नाउन एक साथ है, यानी माइकल एंड ईसाबेल्स, यानी माइकल और ईसाबेल्स, यानी इट मीन्स दे आर टुगेदर इन ओनरशिप, यानी इसका मतलब कि किसी चीज के ऊपर उनके दोनों लोगों का ओनरशिप है। ऑन द अदर हैंड इफ यू से माइकल्स एंड ईसाबेल्स, अगर दोनों ही नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो अगर दोनों ही नाउन में जो है वो एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो देन देयर ओनरशिप इज सेपरेट। तो इसका मतलब कि दोनों का अलग अलग जो भी प्लेस, जो भी चीजें उसको बिलोंग कर रही है वो चीजें उनकी अलग अलग है। जैसे यहाँ पे माइकल्स एंड ईसाबेल्स हाउस इज न्यू, यहाँ पे टुगेदर ओन है, इन दोनों का एक ही घर है, तो माइकल एंड ईसाबेल्स यानी दूसरे नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस लगा है। लेकिन दोनों कंपाउंड नाउन्स है क्योंकि मोर देन 1 नाउन यूज, एक सेंटेंस में 2 नाउन यूज हुआ है, तो माइकल एंड ईसाबेल, लेकिन लास्ट के नाउन में एस लगा हुआ है और इसका मतलब कि दोनों का ही एक घर है। राफल्स एंड टेरीज ट्रक, यानी दोनों का एक ही ट्रक है। माइकल्स एंड ईसाबेल्स, अब दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब है कि सेपरेटली ओन देयर टूथ नेल्स, यानी दोनों का अलग अलग टूथ नेल्स हैं। राइफल्स एंड टेरीज ट्रक्स आर इन पार्किंग, यानी इसमें सेपरेटली, यानी दोनों का अपना अलग अलग ट्रक है कि दोनों नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा है।